میں چلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں ملیں گے. سب سے پہلے تو ہم اپنی کلاس کا آغاز نا ایک اچھی سی بات سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اب ہم اپنی صحیح پڑھائی شروع کرتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کتاب سارے بچوں کو مل گئی ہے؟ یس. عمر آپ کو کتاب مل گئی ہے؟ جی ٹیچر. الحمدللہ. مریم، حریم، طوبہ، یس میم. سب کو مل گئی ہے. اچھا اپنی کتاب لے آئیں، کتاب اپنے سامنے رکھیں. آج ہم نے کتاب میں سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میم میں لے کے آتی ہوں. سارے بچے اپنے سامنے اپنے پاس کتاب رکھیں. ہاں جی، کتاب آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنی ہے. اچھا آپ بچے مجھے یہ بتائیں کہ کون بچہ بتائے گا؟ عمر بتائیں گے. عمر مجھے بتائیں، ابھی پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے 10 مئی کو کیا خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ جلدی جلدی بتانا ہے تاکہ ہم پھر اپنی آگے پڑھائی شروع کر سکیں. میم میں بتاؤں. ہاں جی طوبہ بیٹی آپ بتائیں. انڈیا پہ ڈاؤن کیا. ہوں اور پھر پاکستان نے بھی جوابی حملہ کیا. پھر پاکستان نے بھی جوابی حملہ کیا ہے. پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا ہے، پاکستان نے اس حملے کا جو آپریشن کیا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کوئی دیوار. میم جی میم جو ریڈنگ والی بک ہے وہ والی اوپن کرنی ہے. ہاں جی، ریڈنگ والی لے کر آنی ہے. سنہرا تاج جو ہے وہ کتاب آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں. لے آئیں. اچھا جی، کس بچے کو پتا ہے کہ یہ اس آپریشن کا نام کیا تھا؟ میم یاد نہیں آ رہا ہے. یاد نہیں آ رہا. عمر کو یاد آ رہا ہے؟ بھائی اتنا اہم واقعہ ہو گیا ہے اور بچوں نے آپ لوگوں نے خبریں میں کچھ بھی نہیں سنا ہیں؟ بچے اپنا کھیلتے کودتے رہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے ہی بڑے ہو کے اس وطن کو اور ساری چیزوں کو آپ ہی لوگوں نے سنبھالنا ہے. تو یہ تو بڑا ہسٹوریکل ایونٹ پیش آیا ہے. ایسی چیز جو صدیوں یاد رکھی جائے گی اور بڑی پڑھاتی جائے گی. پاکستان کے دفاع کے حوالے سے 10 مئی کو جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان سمجھے کہ آپ کو باطل کا جو مارکا پیش آیا، اس آپریشن کا نام تھا بنیاد مرصوص. یہ قرآن پاک کا لفظ ہے اور سورہ صف کی آیت سے لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے اہم دیوار. اور اس آپریشن میں اس چیز کا مطلب یہ تھا کہ سارے جو مومن ہیں، جو پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں، سب لوگ اپنے وطن کی دفاع کے لیے بہت متحد ہیں اور مل کر انہوں نے اپنے پیارے وطن کا دفاع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا مطلب تھا. اور آپ لوگوں نے خاص کر کے آپ لوگ جو چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں نا، آپ لوگوں نے کل بڑے ہونا ہے اور آپ لوگوں نے اس وطن کی اور امت کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آنی. تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ بننا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ بننا ہے، تاکہ جیسے ابھی ہماری افواج نے پاکستان کا دفاع کیا ہے تو ایسے جب یہ اہم ذمہ داری آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے، آپ لوگ کی امت کا اپنے وطن کا اسی طرح سے اچھے سے دفاع کر سکیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے پاس قرآن پاک کی تعلیم ہو، ہمارے پاس سنت کا حدیثوں کا علم ہو اور ہمارے پاس دنیاوی علوم میں بھی ہم سب سے آگے ہو. تو ہمیں بہت اچھا ہمیں ہر چیز آتی ہے. اس وقت جو پاکستان کا دفاع ممکن ہوا ہے وہ انہی تینوں چیزوں کی بیس کے اوپر ہوا ہے کہ جو ہماری فورسز تھیں جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا، قرآن و سنت کا علم کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے. اور اس کے بعد جو اس وقت آپ عصری علوم کہہ لیں، جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، اس پر بھی ان کو مکمل عبور تھا. وہ بھی ان کو سارا ہر چیز ان کو آتی تھی. تو وہ اس چیز کو جو ہے نا
अच्छे से लेके चल पाए। ठीक है, तो आप लोगों ने भी एक्स से ही कुरान और सुन्नत का इल्म भी हासिल करना है। और बहुत अच्छा, आप लोगों ने जो भी चीज पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपने किसी से पीछे नहीं रहना। आप लोगों ने बहुत आगे जाना है, बहुत हिम्मत दिखानी है, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग बनना है, और अपने वतन को और उम्मत मुस्लिमा को स्ट्रांग बनाना है। ये ड्यूटी है आप लोगों की। अच्छा जी, आप सारे बच्चों के पास किताब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और आप लोगों ने किताब अपने पास रखी हुई है, तो जरा बुक खोलिएगा और इसके पेज नंबर 8 पे आ जाइएगा। सफा नंबर 8। सारे बच्चों ने खोल लिया है? यस। यस। तूबा बेटी, सफा नंबर 8 के ऊपर हदीस नंबर 1 लिखी हुई है, जरा वो पढ़िएगा। क्या आप पढ़ सकती हैं? कोशिश कीजिएगा जरा पढ़ने की। मैम मेरी बुक ना अभी इधर पड़ी हुई है, दादा के घर है। एड्रेस आपके समझ पास लो। बुक नहीं है? किस हरीमा आपके पास है इस वक्त? जी मैम। हरीमा आप बेटा फिर पढ़िएगा, कोशिश करें जरा पढ़ने की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। तर्जुमा, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। शाबाश। और ये हदीस कौन सी किताब से ली गई है हदीस की? नीचे सुनन नबी हवाला दाऊद। भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। सुनन नबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद से, जिसका नंबर है 3116, 3116। मोहम्मद, ये हदीस कौन सी किताब से ली गई है जो अभी हरीम बेटी ने पढ़ी है? सुनन नबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद से। अच्छा, सुनन अबी दाऊद कौन से हमारे हदीस के आलिम हैं जिन्होंने लिखी, उनका नाम बताएंगे? सुनन अबी दाऊद हमने पढ़ा है ना, पिछला पूरा हम जितना अरसा जो चीजें हमने पढ़ी हैं यही तो हमने पढ़ी हैं। तो अब किस बच्चे को याद है कि सुनन अबी दाऊद ये किताब जिस मुहद्दिस ने लिखी, जिन आलिम ने लिखी, उनका नाम? पहले पहले इसी किताब के नाम के मुताबिक ही है ना? बड़े बड़े बच्चों का ना करो। जी, इमाम कौन दाऊद। बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बता दें, उम्र बता इमाम दें। दाऊद। हाँ जी, हजरत, शाबाश अदन। हजरत इमाम अबू दाऊद, हजरत इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह ने ये किताब लिखी। और हमने उनके सारे सफर पढ़े थे कि कहाँ पैदा हुए थे वो, कौन से इलाके में पैदा हुए थे? सीस्तान में। ठीक है, अभी उस पहले इसको सजिस्तान कहा जाता था, अभी इस इलाके का नाम है सीस्तान। यहाँ आप पैदा हुए और फिर इल्म हासिल करने के लिए, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आपने कहाँ कहाँ का सफर किया? सीस्तान से बगदाद, बगदाद से आप दिमिश्क, अल कुद्स, ठीक है, मिस्र, मक्का मदीना, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, ठीक है, और फिर बसरा में आपकी वफात हुई। ये हमने मैप भी देखा था। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह कितने लंबे चौड़े उन्होंने सफर भी किए, और उन्होंने फिर ये किताब, इस किताब में हदीसें मुरतब की। और इस किताब की जो हदीस नंबर 3100 क्या है जनाब, 16, वो हमने अपनी किताब में सबसे पहले लिखी है। ठीक है, और उसकी हदीस अभी हरीम बेटी ने पढ़ी, और उसका तर्जुमा भी उन्होंने पढ़ा कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है, कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मकाम कौन सा है? जन्नत, है ना? और बीइंग ए मुस्लिम, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं, किस चीज के लिए हम जिद्दोजहद? मोहम्मद,
मोहम्मद, हमारी हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है उमर बता दें। चलें, तैयबा बेटी बता दें, तैयबा। इल्म। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी यस मैम। आ रही है तो प्यारे प्यारे बच्चे मुझे कोई जवाब इल्म हासिल करना। अभी कोई नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है अभी तो अपने अपने ना वीडियोस तो ऑन करने, मुझे बच्चे नजर तो आए। अदन, मरियम, मोहम्मद, इल्म उमर, हासिल करना मैम। अपने अपने वीडियोस ऑन करें। आप लोग मुझे बैठे हुए नजर आए भाई, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे आसपास हैं, जन्नत के फूल हैं। मुझे आप लोगों की कोई लैला हाथ खुश खुश बात चेहरे नजर आए, कोई मुझे आप लोगों की स्माइल नजर आए। मैम सारे हमारी बच्चे अपनी जिंदगी अपनी में वीडियोस तो ऑन करें, शाबाश। इल्म हाँ हासिल जी। करना है। और इल्म हासिल करना, इल्म हासिल हमने क्यों है हासिल करना? ये जो हमारा जो हमने जो अचीव करनी है ना, वो है टॉप फ्लोर ऑफ जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम। हम अपनी सारी जिंदगी में जो भी कोशिश करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसका असल मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हमसे, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना। हम ये क्लास क्यों ले रहे हैं? हम ये क्लास ना लें तो भी तो हमारा दिन अच्छा गुजर जाएगा, है ना? लेकिन क्यों ले रहे हैं, क्यों हदीस का इल्म हासिल कर रहे हैं, क्यों हम चीजें सीख रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, अल्लाह ताला हमसे खुश हो। और जो इतनी बुरी जगह है जहन्नम, जहाँ आग है, जहाँ पे और बहुत सारी खौफनाक चीजें हैं, तो अल्लाह ताला हमें उससे बचा ले। और कहाँ अल्लाह ताला हमें पहुंचा दे? अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे, जो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी जगह है, वहां पहुंचा दे हम। हमारा असल मकसद जो है ना जिंदगी का, वो दोजख की आग से बचना है, सजा से बचना है और इनाम हासिल करना है। अच्छा, अब ये बात बच्चों को क्लियर हो गई कि हमने इस जिंदगी में किस चीज के लिए कोशिश करनी है, पूरी लाइफ हमारी किस चीज के गिर्द घूमती है, हमारी जिंदगी की असल यस अचीवमेंट मैम। क्या है? अल्लाह ताला की रजा। अल्लाह ताला, हमने, हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बहुत बड़ा घर हासिल करना, एक बड़ी सी गाड़ी हो हमारे पास, ये हमारी जिंदगी का मकसद है? क्या मकसद है हमारी जिंदगी का? हम्म अल्लाह ताला की रज़ा। अल्लाह ताला की रजा हासिल करना। असल अचीवमेंट हमने इस दुनिया में क्या करनी? मरियम, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपने क्या बनना है, क्या हासिल करना है, इस जिंदगी से क्या हासिल करना है? असल ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का? मैं बच्चों को बताऊं, बच्चे तो सारे कर रहे हैं, जो कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, हम में और हम मोमिनीन है ना, इंशाल्लाह ताला हम मुसलमान हैं। हमारा और इस दुनिया के बाकी सारे लोगों के दरमियान एक डिफरेंस ये है कि हम हमारे पास जो ये जिंदगी है, इसमें हमने क्या चीज हासिल करनी है? इसमें हमने स्ट्रगल करनी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। दुनिया में ना प्यारे बच्चों, दो ही तरह के लोग हैं। कौन कौन से? एक है जनाब मुस्लिम्स, मोमिनीन, और दूसरे हैं काफिर। तो हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है बच्चों? तूबा, बोर्ड के साथ नहीं छेड़ करें, सिर्फ बात गौर से सुने। हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? जन्नत का हसूल। हमें अल्लाह ताला जहन्नुम से बचा लें और कहाँ पहुंचा दें? जन्नत में। ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ठीक है? और जो काफिर है ना, वो तो जन्नत जहन्नुम को मानते ही नहीं है। उनकी जिंदगियों का क्या मकसद है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा दौलत। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, गाड़ी कैसे लिखेंगे बच्चों? मेरी तो बार बार पेंसिल गुम हो रही है। ऐसे। तो हमारी लाइफ में और जो कुफार है उनकी जिंदगी में डिफरेंस ये है कि हमारी जिंदगी की सारी जिद्दोजहद, हमने पढ़ाई करनी है, हमने अच्छे काम करने हैं, हमने कोई जॉब करनी है, हमने कुछ भी करना है ना, तो हमारी जिंदगी का असल मकसद जहन्नुम से बचना और जन्नत में जाना है।
ठीक है। और बाकी सारी जितनी चीजें हमें अल्लाह ताला इस दुनिया में देते हैं उस पर हम खुश होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। कोई चीज हमें मिल जाती है तो उस पर हम बहुत खुश होते हैं, कुछ हमें नहीं मिलता तो उसका हमें अफसोस नहीं होता, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रगल उसके लिए है भी नहीं। ठीक बात हो गई, ये बात बच्चों को समझ आ गई। सारे बच्चों को मरियम हमारी जिंदगी की जितनी स्ट्रगल है, जितनी मेहनत है, आप सुबह उठती हैं, स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, वापस आती हैं, अम्मी की सारी बातें मानती हैं और सारे काम करती हैं, फिर ये क्लास भी लेती हैं, इस सारी चीज का मकसद क्या है? आपकी इस सारी जिंदगी, जो पूरा दिन आप इतना इतना काम करती हैं, कि बहुत सारा करती है ना, स्कूल आना जाना, पढ़ाई करना, फिर घर का कुछ अम्मी के हाथ बटाना, फिर दोबारा क्लास लेना, फिर बीच में नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, कोई आ जाए तो घर में कोई फुप्पो खाला कोई भी आता है उसको पास भाग के जाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। इस सब का मकसद क्या है? क्यों करते हैं सारा कुछ मरियम? उमर आप बताइएगा। अल्लाह की रजा के लिए। हम मांगते हैं अल्लाह ताला हमें इनाम क्या दे? जन्नत फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस दें। ठीक है। अभी बच्चों को समझ आई, सारे बच्चे ये बात ज़हन में रखें। अब अदन है ना, प्यारी सी बेटी है, और मोहम्मद है, और हरीम है, तूबा तैयबा रिबा है, उमर है, ठीक है, मरियम नासिर है, सारे बच्चे हैं ना। हमारी सारी स्ट्रगल किस लिए है? हम जो सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फिर जल्दी से स्कूल चले जाते हैं, फिर हम वापस आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर कारी साहब आ जाते हैं, फिर हम सिपारा पढ़ते हैं, फिर हम मस्जिद भी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, या घर में नमाज पढ़ते हैं। ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम जहन्नुम की आग से बच जाएं और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हमें प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, प्यारी प्यारी चीजें सिखाई हैं। अब जब हमारी जिंदगी का जो इतना बड़ा मकसद है कि हमने जन्नत में पहुंचना है, तो हम भला जन्नत में कैसे पहुंच सकते हैं, इसका तरीका भी उन्होंने हमें बताया। तो इसका तरीका हमें पता चल रहा है सुनन अबी दाऊद की ये जो हदीस है, हदीस नंबर क्या है भला तैयबा? तैयबा, ये जो अभी हदीस अलीम ने पढ़ी, इसका नंबर क्या है? इसका हदीस नंबर क्या है? बुक में से देख के बताइए, लिखा हुआ है बेटा। तैयबा हदीस नंबर बताइएगा। मैम बुक नहीं है हमारे पास। आप लोगों को बुक नहीं मिली अभी तक? अच्छा हाँ, आप लोगों की सॉरी, मैं भूल गई। अच्छा, किस बच्चे के पास बुक है? मोहम्मद के पास है। मोहम्मद हदीस नंबर बताइए किताब से देख के। 8। हदीस नंबर 8 तो नहीं है, सफा नंबर 8 है। हदीस नंबर देखे ना, जहाँ हदीस लिखी हुई है वहां हदीस नंबर देखें। 1 मिनट। किताब खोल के सारे बच्चे थ्री सामने रखें, अभी हम उसमें से थ्री रीडिंग भी डबल करेंगे। वन सिक्स जी, 3116। 3116 को उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? 3116 उर्दू में पढ़ेंगे 3116। मेरे पीछे दोहरा लें, ये सुन्नन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3116 है। तीन इसमें हजार हमें एक सौ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, जो बंदा जिसका आखिरी कलाम यानी मरते हुए आखिरी बात जो वो करेगा, हम सबने फौत हो जाना है ना। अब हम बातें कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारी जिंदगी की आखिरी बात भी होगी। नहीं। हेलो।
हेलो। जी बच्चों, तो आप लोगों को मैं बता रही थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें ये बताया कि जिसका आखिरी कलाम यानी आखिरी बात ये होगी कि वो क्या कह रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या होगा, वो जन्नत में जाएगा। ठीक है। हम बातें करते हैं ना दिन भर, तो क्या पता हमारी आखिरी बात कौन सी होगी। कलमा भी पढ़ते हैं ना, सारे बच्चे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे बच्चे ये कलमा पढ़ते हैं, जरा एक दफा ऊंची आवाज में सारे पढ़े माइक खोल के। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला ये ना इलाहा आता है इल्लल्लाह। सबको? शाबाश, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी एक नारा है ना। और वैसे भी हम जब देखें, हम बहुत दफा पढ़ते हैं दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अगर नहीं पढ़ते तो हमें पढ़ना चाहिए। तो जिस बंदे की आखिरी बात ये होगी कि वो कह रहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और साथ ही उसकी डेथ हो जाती है, साथ ही उसकी मौत हो जाती है, तो क्या होगा? वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। जैसे अभी मैं कह रही हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अभी फरिश्ता आ जाए और मुझे ले जाए आकर, तो मेरा आखिरी कलाम फिर क्या हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या होगा कि फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि फिर कहाँ जगह मिलेगी, इंशाल्लाह ताला मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। तो ये बताया गया इस हदीस में कि जो बंदा आखिरी बात जो है वो ये कहेगा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इससे मुताल्लिक कहानी मजेदार सी। तो कहानी कहाँ से शुरू करेंगे? चलें, तूबा लोगों के पास बुक नहीं है, तूबा के अलावा बाकी बच्चों के पास किताब है? जी जी मैम, मैं सब पढ़ूं? सबके पास किताब है? जी चलें, एक जी सेकंड रुकते हैं, मैं ना ठहरे आप लोगों से। आप लोग चूंकि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है ना, उनके लिए थोड़ी सी सहूलत पैदा करते हैं। फिर जिन बच्चों के पास किताब है एंड में उनसे पढ़वाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल के सामने रखें। और हम सबसे पहले, हरीम बेटी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, हरीम की बिल्कुल बारी आएगी। आप लोगों ने ना तूबा तैयबा रिबा, आप तीनों बहनों ने जहाँ कहीं भी बुक है ना, वहां से आप लोगों ने मंगवा लेनी है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यहाँ से आपसे पढ़वा लेते हैं। सबसे पहले तूबा, आप यहाँ से जरा शुरू कीजिएगा, और बाकी जिनके पास बुक है वो बुक पे देखते जाएं। तूबा, आपके लिए मैंने मार्क किया है, पढ़िएगा। बस मैम। खूबसूरत बात, सलमान ने सैरो सयाहत और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की तफसीलात देखना शुरू की। अच्छा और ठहरे, ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक वाले मिनट। बुक पे तो ये हाँ एक शुरू से मिनट, हुआ गलत पेज मुझे। शेयर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत पेज शेयर हो गया। अगला पेज शेयर हो गया, फर्स्ट पेज करना था। चलें जी, आप पढ़िएगा। तूबा, हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ें। ये तूबा झील बेटी कितनी बिस्मिल्लाह करें। खूबसूरत है। ये झील कितनी खूबसूरत है, और ये आबशार, अरे ये गरूब आफ्ताब का मंजर तो देखो। और ये फूलों का बाग, अफ ये छाछाते परिंदे।
اچھا اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ غروب آفتاب، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے؟ غروب آفتاب، سارے بچے پڑھیں غروب آفتاب. یہ مرکب لفظ ہے، دو لفظ مل کے بنے ہوئے ہیں تو اس کو اکٹھا پڑھیں گے غروب آفتاب. غروب آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج کا غروب ہونا، جس وقت مغرب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج. اور یہ پھولوں نہیں ہے، یہ پھلوں کا باغ ہے. اور بیٹا یہ لفظ ہے چہچہاتے، سارے بچے بولیں چہچہاتے. چہچہاتے. شاباش، چہچہاتے. چلیں جی آگے طیبہ آپ پڑھیے گا یہاں سے لے کر یہاں تک. طیبہ بیٹی ہری آپ. نیٹ پر دنیا کی خوبصورت جگہیں سرچ کرتے کاشف اور سلمان حسین مناظر کے سحر میں گرفتار تھے. 13 سال سلمان اور 8 سالہ کاشف دونوں بھائی بھی تھے اور گہرے دوست. شاباش، ویری گڈ. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہم نے کہی نا، اتنی خوبصورت جھیل، اتنا خوبصورت آبشار، بہت خوبصورت غروب آفتاب کا منظر، پھلوں کے باغ، پھر چہچہاتے پرندے، بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ سلمان اور کاشف دیکھ رہے ہیں، جو کہ دونوں بھائی ہیں. اور وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے نیٹ آن کیا ہوا ہے اور اس پر خوبصورت خوبصورت جگہ، دنیا کی بیوٹیفل پلیسز وہ سرچ کر رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں. اچھا جی اریبہ بیٹی آگے آپ پڑھیے گا ذرا. اریبہ. میں اس کی سیر ضرور کرنا چاہوں گا، کاشف نے جوش سے کہا. اور میں بھی تو آبشار. پھوار میں بھیگنا بھیگنا. چاہوں گا. آسمان نے سلمان نے خواہش بیان کی. شاباش. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ دونوں بھائی بھی ہیں، چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک بہت خوبصورت باغ آتا ہے تو کاشف کہتا ہے میں نے ضرور جانا ہے اس باغ میں، کتنا پیارا باغ ہے، میں تو ضرور